रघुनंदन राव, माननीय अध्यक्ष महोदय, फाइनेंस बिल के ऊपर बात करने का मौका दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमण जी ने 24 का फाइनेंस बजट रखते हुए इस देश के युवा के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए मोर ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बजट को लाया है। ये बिल में जो कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बार बार हमारा सांसद लोग बात कर रहे हैं, उन लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, we brought transparency in the income tax wing and as well as in the other departments also, due to which the persons, those who respect the government, has been increased and the number of taxpayers strength has been increased in this country. Such a transparency has been brought in the income tax department, and a person who is filing the income tax don't know where and who is scrutinizing his income tax papers, and the officer also don't know where does the application came from. Such a type of transparency is brought in the income tax system, so the persons, those who are the taxpayers number has been enormously increased in this country. This clearly shows the people of this country are showing the confidence on the government which is led by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा तेलंगाना राज्य में बार बार इसके पहले जो सरकार था, टीआरएस सरकार, या जो सरकार 6 महीने के पहले गवर्नमेंट में आया था, वो सरकार, ये दो सरकार, कांग्रेस की सरकार ही होने दो और टीआरएस का सरकार होने दो, कभी भी स्टेट में कुछ अच्छा हुए तो उन लोग करे बोलते, अगर कुछ बुरा हुए तो वो सेंटर के ऊपर डालने के लिए कोशिश करते रहते। हर बार वो 10 साल का बीआरएस का रूलिंग होने दीजिए, नहीं तो 6-7 महीने को कांग्रेस का रूलिंग होने दो। कोई भी एक बात, कभी भी कुछ राज्य के लिए केंद्र सरकार ने कुछ अच्छा करता, उस अच्छा चीज़ के बारे में इन लोग कुछ भी नहीं करता, बार बार बदनाम की पॉलिटिक्स करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, तेलंगाना में 28 crores 88 lakhs 11,000 rupees public money has been spent by the then government, TRS government, for 10 years, which was found fault by the COG department, and COG said that there is no permission for these 28 crores 88 lakh 11,000 rupees. Even if you come to the Pradhan Mantri Awas Yojana, the central government has given Pradhan Mantri Awas Yojana like other states to the Telangana also. Under the scheme of Pradhan Mantri Awas Yojana, the central government is giving the money, and the KCR says he is giving in the name of 2 BHK, but unfortunately they never say that the central government has given the money under Pradhan Mantri Awas Yojana. Now the new government, which is headed by Congress party and Mr. Revanth Reddy, they are saying that they are going to give Indiramma houses, but they are also not saying that this money is being given by the honorable central government under the leadership of Narendra Modi ji for Pradhan Mantri Awas Yojana. At least he says that we want to correlate the money of the Pradhan Mantri Awas Yojana with Indiramma houses. Like this, there are so many schemes which were given by the central government and the money is being dispersed. Earlier it was under the UPA rule, there was only 32% of the devolution of funds was there. But now it has been increased to 42%, but no one is saying that the states are getting 42% of the devolution of the funds. उसमें भी कैसा कम करके बताने के लिए कोशिश करता। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग नया जीत के हैं, पहली बार सांसद बन के हैं, इतना सीनियर लोग बन के 5 बार 6 बार जीत के आके ये क्या तरीका मेरे तो समझने में नहीं आ रहा। अगर लैला को देखना है तो मजनू का आंखों से देखो, ये बजट को देखना है तो निर्मला सीतारमण जी का आंखों से देखो, गरीब का आंखों से देखो। Poorest of this poor in country is being served by this government. You people are shouting about only A1 and A2. क्यों बोले तो आपको A1 का दावत याद आता, A2 का दावत याद आता, कभी भी दावत का। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक शब्द भी, ये क्या अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट बोलने का मौका दे अध्यक्ष महोदय। इन लोगों का तरीका कैसा है बोले तो 372 में स्पष्ट है, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है
उसमें मंत्री जी का स्टेटमेंट मांगा, मंत्री जी ने आपको स्टेटमेंट दे दिया, आपकी मांग पर स्टेटमेंट दिया। संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, नियम प्रक्रिया के अंदर उस पर स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाता। ओके, माननीय मंत्री। In the year 2014, when Honorable Prime Minister Narendra Modi ji came into power, there was a demand for to bring one nation, one tax. कांग्रेस लोग बोलते हैं हमारा सोनिया जी का मानस पुत्रिका, but they failed to introduce the GST bill 2004 and 14. After 10 years of their governance, they can't do the act of GST. But it was brought by under the leadership of dynamic leadership of Sri Narendra Modi ji. The GST was being introduced in this country. In the year 2017, when it was introduced for the first time, for the first month, 68,000 crores of rupees has came as the GST tax in this country. And in the last month, it has been grown up to the 2 lakh crores. Your Honor, may kindly see, this is all happening just because of the transparency and the government which is doing all this for the poorest of the poor. But the opposition leaders, they want to always blame the government by saying one or the other thing. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही शब्द बोल के बोलना चाहते हैं पप्पू यादव जी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात बोल के मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। अगर 2024 का बजट को अगर सही तरीका से देखना है तो वो देखना है तो तेलुगु में कहावत है, अगर लैला को देखना है तो मजनू का आंखों से देखना है। ये लोग ये बजट को देखना है तो पूरेस्ट ऑफ द पूर ऑफ द कंट्री के साथ उसका आंखों से देखना, मगर उन लोग जो नाम लेता ये 1 and 2 उन लोगों के दावतों में कहा के उसका आंखों से देखे थे बजट उन लोगों को समझ नहीं आता। मैं पहली बार जीत के आया, मेरे को ये बजट का फाइनेंस बिल के ऊपर बात करने का मौका दिया, मगर उन लोगों तो घंटों घंटों का शब्द करने का आवाज और अवसर दिए तो भी उन लोगों को कई शब्द, एक शब्द में उन लोग अच्छा भी बोलने के लिए बजट के मना किया। मगर मैं पहली बार आया तेलंगाना से, जहां टीआरएस और बीआरएस और कांग्रेस पार्टी ने पैसा केंद्रीय सरकार से लेता और बदनाम हमारे को करता। कल का बजट में सिर्फ और सिर्फ 2 पदों के ऊपर 48,000 crore has been given to the तेलंगाना गवर्नमेंट, मगर वहां हमारा तेलंगाना कांग्रेस का सरकार ने बड़ा बड़ा फ्लेक्सी लगा के ये बात बोलते तेलंगाना से भाजपा को 8 MP दिया, 8 पैसा भी नहीं लाता। वो 7वीं क्लास पढ़ा, 5वीं क्लास पढ़ा, हमारा सीएम क्या पढ़ा मैं नहीं बोल सकता हूं, मगर जो आदमी जो बजट को सही तरीका से नहीं देख सकते उसको मैं क्या बोल सकता हूं। सर, निर्मला सीतारामन जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर कंट्री में हर जो स्टेट है, हर स्टेट को इक्वल अपॉर्चुनिटी देके आगे बढ़ाने के लिए जो फाइनेंस बिल लगाया, फाइनेंस बजट लगाया, मैं इसको समर्थन देते हैं। मेरे को अवकाश दिया माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देते विराम लेता हूं। धन्यवाद। पप्पू यादव जी, वो असाउद्दीन आप बैठ जाओ, असाउद्दीन ओवैसी जी को बोल लेने दो। Thank you, sir. आप बैठ जाओ। Sir, thank you, sir. Sir, the threshold of 2.5